or any visceromegaly, and in specific investigation, I want the beta HCG levels, and I also want the thyroid profile, including the T3, T4, TSH, HbA1c of the patient, and ultrasound to look for the cervical length, and if any previous cytogenetic analysis of the RPOC is available or not, or any screening for the EPLA, including the antiphospholipid antibodies or the lupus anticardiolipin antibodies, or the inherited thrombophilias, including factor V Leiden, if ever done. Okay. In the examination, patient's BMI is 28 kg per meter square. Her blood pressure is 140/90. Pallor is positive, and general physical examination rest is all unremarkable. And in the investigation, the patient's HB is 9.5 with all RBCs indices decreased. Serum ferritin not done, and urine complete analysis is normal, and blood group is A positive, and the past workup of the APLS is positive, anticardiolipin and antiphospholipid is positive. Rest, Two samples? there is only one sample available. Okay. Okay, and rest, what did you ask? There is no history of no beta HCG done, no dating scan done. Patient has just one report of UPT positive at home. Okay, HbA1c in thyroid profile, nothing done up till now? Nothing. Okay. ओके डॉक्टर पलवशा, अब मैं समराइज करूं केस या फिर मैनेजमेंट करूं? आप पहले समराइज करें। ठीक है। Saima, 35 years of age, married for 10 years, Gravda 7, para 2, abortion 4, previous to lower segment cesarean section, presented at with the gestational amenorrhea of 5 weeks, and her LMP was 5 weeks back. She is sure of dates, housewife by occupation, and presented for the antenatal visit. Her current pregnancy is spontaneous conception and confirmed via UPT at home. No other significant findings. Her previous bad obstetric history showing the 4 miscarriages are of first trimester, and in the first 2 miscarriages, the medical termination was done, and in the next 2 miscarriages, there is the history of the dilation and curettage. And there is the history of one IUD at term, and it was delivered via lower segment cesarean section with the history of the fits due to the uncontrolled blood pressure, despite of having multiple medications, and and she is having the one alive issue, which who was delivered at 8 months of pregnancy, and she took multiple medications, including the low molecular weight heparin or the aspirin in that pregnancy, and there was also the history of uncontrolled blood pressure, due to which she was delivered at 8 months, and the EPLA workup was done, and on examination, she is having the BMI of 28 kilogram, and the blood pressure is 140/90, and pallor positive, and the rest of the examination is unremarkable. Okay, Javedia, thank you. ये तो बहुत, आपने तो डॉक्टर हाथ दिया, सब कुछ घुसा दिया इस केस में. Listen, Javedia, you have taken 8 minutes in history. Okay? जी. उस पर आते हैं, डिटेल फीडबैक पे आते हैं. 8 मिनट्स में आपने हिस्ट्री ली है, और चलो फिर आपने उससे एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन एक साथ मांगी. आप पहले एग्जामिनेशन मांगो, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है? और फिर अब आप जब समराइज करने लगे हो, तो समरी में आपने पूरी हिस्ट्री बताई है. इट वॉज समरी, इट वॉज नॉट हिस्ट्री. आपने एक एक मिसकैरेज उसका डिटेल में बताया है. क्योंकि डॉक्टर पलवशा, मुझे तो फाइंडिंग्स इतनी ज्यादा लग रही. सिंपल, शी हैड 4 मिसकैरेजेस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर. सारे 4 फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थे ना? जी, बता रही हैं कि जी. 2 महीने के थे, तो ये एक लाइन में समराइज हो जाएगा बहुत आराम से. ठीक है, मतलब हमने उनकी कॉज नहीं बतानी साथ, नहीं, और टर्मिनेशंस भी नहीं बतानी. हिस्ट्री आपकी सुनी है एग्जामिनर ने.
ठीक है। सारी हिस्ट्री उसने सुनी है, आपने हाँ उससे जी। क्या पूछा है। द थिंग इज समराइज करने के भी नंबर हैं। अब समरी में भी आप सारी हिस्ट्री बता दोगे, इट मीन्स यू डोंट नो हाउ टू समराइज। उनको ये मैसेज जाएगा जब आप सारी हिस्ट्री हम्म बता रहे हो। तो इसकी प्रैक्टिस हम्म पहले भी बताया था कि आपकी एक डेढ़ लाइन आपकी हिस्ट्री की होनी चाहिए जिसमें पॉजिटिव फाइंडिंग्स, बस उसके बाद फिर आप एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स बताएंगे। एंड देन जो है सिग्निफिकेंट, ओनली द सिग्निफिकेंट। जो नेगेटिव, जो हमारी क्या कहते हैं नॉर्मल फाइंडिंग्स होती है ना एग्जामिनेशन की, वो अगर रेलिवेंट टू द केस है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है नॉर्मल वाली, फिर जरूर बताओ। ठीक, जैसे एनीमिया का पेशेंट है, उसमें कार्डियक एग्जामिनेशन उसका नॉर्मल है, तो वो जरूर बताना है आपने। अदरवाइज द थिंग विच इज नॉट रेलिवेंट विद द पीसी, यू विल नॉट मेंशन इट, यू विल जस्ट मेंशन द सिग्निफिकेंट थिंग्स। ठीक है। उसके बाद फिर आपने जब हम्म। इन्वेस्टिगेशंस बताई तो आपने हीमोग्लोबिन बताई थी? मैंने बेस लाइंस मांगनी भूल गई मैं। नहीं, उन्होंने बताई है आपको हीमोग्लोबिन? हाँ जी उन्होंने मुझे बताई है। हाँ, आपने नाइन पॉइंट समरी में फाइव हीमोग्लोबिन नहीं बताई उसकी। मैंने अभी सिर्फ एग्जामिनेशन और वो फर्स्ट स्टेशन वाली हिस्ट्री और एग्जामिनेशन बताया। ओके, ठीक है। तो ये मुझे समरी में ऐड करनी थी चीजें। अब आ जाते हैं आपकी हिस्ट्री में। पहली चीज तो ये है कि मुझे लगा तुम बहुत ज्यादा एंशियस हो। हम्म मरीज को वर्ड से सुन नहीं रही थी। मरीज ने तुम्हें इतना बड़ा हिंट दे दिया कि डॉक्टर साहब मेरे 4 बच्चे जो हैं वो जाया हुए पहले पहले, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का उसने बोला 2-2 महीने के। ठीक है। उसके बाद उसने बोला फिर जी जब मैं प्रेग्नेंट हुई मेरे दोनों बच्चों में मुझे वो इंजेक्शन लगाते रहते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे एक बीमारी है। उसने आपको हिंट दे दिया। उसने उस टेस्ट, जाहिर है फिर आप उधर ही पूछे, अच्छा आपके टेस्ट करवाए गए थे 3 महीने के गैप से? हाँ जी डॉक्टर, कराए थे। मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन मुझे वो हमल के लिए वो मुझे इंजेक्शन देते थे। तो जाहिर सी बात है ना चंदा, 4 उसके अबॉर्शन के बाद 2 बच्चे फिर उसके हुए, वो फिर इन इंजेक्शन पर ही रहे हैं। वो एप्ला डायग्नोज पहले ही हो चुकी है और वो तो ट्रीटमेंट पर चली है, ट्रीटमेंट से ही उसकी उसके पास बच्चे हैं, है ना। जी। बार बार आपको बोल रही है मुझे इंजेक्शन लगे हैं, फिर वो फिर आप ना जनरल हिस्ट्री की तरह उससे सारा एप्ला पूछ रहे हो। शी इज ऑलरेडी डायग्नोज्ड, ये तो बहुत आसान है इसकी तो हिस्ट्री। आप सिर्फ, अच्छा फिर वो जो ले रही है इंजेक्शन, आप पूछें अच्छा गोली भी खाई थी आपने? अच्छा, उसके जब कोई भी पेशेंट आपकी ऑलरेडी एप्ला डायग्नोज्ड है और वो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन ले रही है, अब आपका फर्ज बन जाता है कि उस लो मोलिकुलर वेट हेपरिन के आप साइड इफेक्ट्स पूछें। आप कहाँ लगाती हैं इंजेक्शन? ठीक है। और उससे आपको कोई नुकसान तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है आपको, जिस्म पे जो है वो खारिश तो नहीं होती, जिस्म पे धब्बे तो नहीं बने? ठीक है। ये सारी चीजें आप उसके साइड इफेक्ट्स पूछेंगी। उसके बाद फिर अच्छा एक चीज हादिया, आपके लिए कहाँ है हादिया? जी मैडम। हादिया, आपने ना, जब आपने उनको ये बताया मुझे एक बीमारी थी, फिर उनको ही आपसे पूछना था कि अच्छा आपने फिर आपके 2 बच्चे बचे, इलाज के साथ बचे थे, फिर क्या इलाज कराया था, ये उसको पूछना था। आपने उसे खुद ही हिंट दे दिया कि मुझे बहुत ज्यादा टीके लगते थे। हाँ जी, वो ये यही ये वाला मैंने, केस था कि जी जी, ये हाँ डायग्नोज एपीएलएस है। हाँ, ये डायग्नोज है ईपीएलएस है ना। ठीक है। तो आपने आपने उसको एक तरह से हिस्ट्री ऐसे चली है कि तुमने उसको ना खुद ही हिंट दे दिया मुझे टीके लगते थे। जी जी। हाँ हाँ ठीक है एग्जैक्टली, ना। ये ना केस ऐसे था कि पेशेंट हिंट हाँ दे देती है। हाँ। अब आपने इंक्वायरी करना है सब। ठीक है। तो फिर लेकिन जवेरिया ने क्या किया? जवेरिया वो केप्ट ऑन आस्किंग, Javier हाँ was हम्म kept on asking. Javier was हम्म trying to diagnose APLS, लेकिन हम्म हिंट लो ना, तुम्हें ज्यादा इसमें करना ही नहीं था कुछ, बस तुम बाकी की चीजें पूछ लो। अदर थिंग्स जो एपीएलएस में होती हैं वो पूछ सकते हैं ना वो कि आपको पूछो, कोई आप पूछो शी इज डायग्नोज्ड एपीएलएस जवेरिया, आप पूछो अच्छा आपको कभी कोई फालेज या कभी खून हाँ जमने का कोई मसला तो नहीं हुआ टांगों में। एपीएलएस के? शी इज ऑलरेडी डायग्नोज्ड एपीएलएस, 2 बच्चे हुए हैं उसके। और दूसरा उसने हाइपरटेंशन की आपको दी है, इसका मतलब उसमें वीटीई का फैक्टर है। आप पूछो उसको कभी कोई वीटीई का मसला तो नहीं हुआ, आपको खून जमने का कोई मसला तो नहीं हुआ? ठीक है। जी अच्छा, उसके बाद फिर बहरहाल मुझे ये लगा कि आपने ना हिस्ट्री में ज्यादा टाइम लगाया, आपको वो क्लिक ही नहीं हुआ कि शी इज हम्म ऑलरेडी डायग्नोज्ड एप्ला। और मरीज बार बार पूछ रही है डॉक्टर साहब
मुझे अब बताएं, अब मैं क्या करूं, अब मेरा 1 हफ्ता पूरा हो गया है, 1 हफ्ता मैं ड्यू हो गई हूँ, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको इसका मतलब ये मरीज सिनेरियो चीख चीख के आपको हिंट दे रहा है, आपको आगे लेके चलनी है बात। इट्स डायग्नोज्ड। सिर्फ उसकी एप्ला की वो स्टोरी सुनो, और हाँ, फिर उसने वो जो हाइपरटेंशन IUGR का सारा बताया, उसका बच्चा अब कैसा है, उसके बाद आप पूछो अच्छा अभी तो नहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता, उसके बाद आपके ब्लड प्रेशर के टेस्ट हुए थे, गोली तो नहीं लगी आपको ब्लड प्रेशर की? हो सकता है ना शी कुड बी क्रॉनिक जी हाइपरटेंसिव। जी आदिया। जी मैडम, मुझे ना यही ऐड करना था कि इन्होंने ना क्रॉनिक हाइपरटेंशन को इसमें रूल आउट करना था। दूसरा, पेशेंट ने एक कंप्लेन कही कि मुझे ना कमजोरी बहुत है, और HB भी कम बताई, तो इनको एनीमिया के भी साइंस एंड सिम्टम पूछने थे। तीसरी चीज मैंने जो नोट की वो ये था, इन्होंने एज्यूम किया कि जो इनका बेबी की डेथ हुई थी ना, वो IUD था। वो IUD नहीं था, वो अर्ली न्योनेटल डेथ थी। वो एडमिटेड बेबी था नर्सरी में, और आफ्टर 1 वीक वो बेबी एक्सपायर हुआ था। एक और चीज हादिया, इसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि जो बेबीज की हिस्ट्री थी ना, मुझे सिर्फ एक बेबी की हिस्ट्री सही सुनी है, वो हाइपरटेंशन और IUGR की वजह से जो सिजेरियन हो गया, उसमें भी हेपरिन लगी है पेशेंट को। दूसरी जो आप ये अर्ली न्यूनेटल डेथ बता रहे हो ना, ये मुझे डिटेल में हिस्ट्री ना आपकी तरफ से सुनी, ना उनकी तरफ से डिटेल में पूछी गई। ये दूसरे नहीं, बेबी का मुझे दूसरा समझ नहीं वाला आ रहा। तो बेबी उसके पास है ना, वो भी 8th मंथ पे डिलीवर हुआ था, और प्री एक्लेम्शिया उसका सुवियर था, इम्पेंडिंग एक्लेम्शिया था जिसकी वजह से सेक्शन हुआ था। और उससे डॉक्टर हादिया पिछला वाला मुझे मैडम ऐसे ही बताया था एक्लेम्शिया। ना। दैट बेबी इज अलाइव? जी जी, एग्जैक्टली। मैं आपको दोबारा जी बताती हूँ। फर्स्ट सेक्शन जो हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ एक्लेम्शिया। पेशेंट डेवलप्ड एक्लेम्शिया, बेबी वाज ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड, एंड फिर उसके ऊपर सिजेरियन हुआ और बेबी की अर्ली न्यूनेटल डेथ होगी। जो ठीक है। दूसरा सेक्शन था जो इसके पास अलाइव बेबी है, वो 8 मंथ्स पे हुआ था ड्यू टू इमिनेंट एक्लेम्शिया। वही इसके पास है ना? वही उसके पास है। जी जी मुझे ये बिल्कुल। दूसरे वाला बेबी अच्छे से रजिस्टर हुआ है, पहले वाला END मुझे नहीं रजिस्टर हुआ, तो मैं थोड़ी हम्म। कंफ्यूज हो गई, मैंने दोबारा उसकी पैरिटी देखी। चलो, हाँ। अब बात ये है डॉक्टर कि परवशा, इसमें हाँ, हम एप्ला की क्या हिस्ट्री लेंगे? अगर डायग्नोज केस है एप्ला, तो मैं क्या हिस्ट्री पूछूंगी इसमें? चंदा, पहले तो जब मरीज ने आपको बोला कि मेरे टेस्ट हुए थे, उन्होंने मुझे कुछ बताया कि क्यों, क्या मेरी मेरी बीमारी है, उसको डिटेल नहीं पता। दूसरा, वो इंजेक्शंस ले रही थी, ठीक है। आप उससे पहले तो ये पूछो, इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट्स पूछो, ठीक है। और आप अभी ले रही हो, ठीक है। अभी ले रही हो, ये भी आपको जो है वो हिंट दे देगा कि वो उसको VT, उसको प्रोफाइलेक्टिक डोज उस वक्त लगा था, या वो थेराप्यूटिक ले रही है। या तो आप ये पूछ सकती हैं, या फिर आप उसके साथ एप्ला के साथ VT के सिम्टम्स पूछो, ठीक है। ठीक है। जो डायग्नोज्ड एप्ला होती है ना, उसके ये 3-4 सवाल हम्म। है। नहीं, मेरे मैं, माइंड में क्लिक मैं नहीं किया, वरना तो इसकी हिस्ट्री बहुत छोटी बन जाती। सही कह रही हैं आप। सही है ना? अच्छा, हाँ जी। उसके बाद फिर जो है, आपको हाइपरटेंशन को बाद में, बाद का इवेंट भी पूछना था आपको, ये मैंने जी। पहले आपको बता दिया। सो उसके बाद फिर आपने हिस्ट्री अपनी बहुत ज्यादा लंबी कर दी। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं है, यू आस्क्ड फॉर चेहरे पे बाल, वजन, और एक और पॉइंट था जो मेरे से मिस हो गया, ये मैं वो कितने? एंडोक्राइनल PCOS जो है वो, मतलब रूल आउट करी थी, थायराइड PCOS। ओके। जवेरिया, आपको लगता है अगर एक केस ऐसा है कि एक पेशेंट, देखो सिनेरियो की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पेशेंट बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री के साथ आई है, she is diagnosed APLS in the previous pregnancies, and she is overdue for 1 week, and she is more concerned about the management now. आपको लगता है कि इसमें अब कोई और कॉज निकलेगी? आपको उसको डिटेल में डिग करना है? आप एक सेंटेंस में पूछ रहे, अच्छा आपको शुगर का, ब्लड प्रेशर का, ब्लड प्रेशर का तो मैंने आपको बता दिया, आपको शुगर का मसला तो नहीं है, गिलर का मसला तो नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, फैमिली, आपके खानदान में एबनॉर्मल बच्चे, या फिर जो है क्या कहते हैं, खानदान में खून जमने की कोई बीमारी तो नहीं है? ये चीजें आप फैमिली हिस्ट्री में पूछे। अच्छा, और चीज, अच्छा एक और पॉइंट मैंने आपका बहुत अच्छा नोट किया, आपने ये बहुत अच्छे से पूछा उसका कि आपके बच्चे के नमूने के टेस्ट हुए थे, वो आपने लाजमी पूछना है। ये मैंने सबसे ऊपर लिखी है आपकी बात, ये आपने फौरन से ही पूछा कि उसके 4 अबॉर्शन हुए हैं, तो मरीज ने कहा कि नहीं, तो मीन्स कि उसका कोई ऐसा वर्कअप नहीं हुआ, राइट, उसका जेनेटिक हम्म। कोई नहीं हुआ, बस उसका अप्लाई, जब टेस्ट हुए उसका अप्लाई पॉजिटिव आ गया, तो अब आपको उससे कोई वास्ता भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने यही लिखा है दोबारा, ये मैं सीक्वेंस में लिखती गई थी, यू यू आर आस्किंग क्वेश्चन, स्मोकिंग और वो सारी चीजें,
और भी काफी चीजें थी। टेम्पलेट ठीक है, फॉलो करना है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि तुम्हें गेम पता चल गई है मेरा पेशेंट को क्या मसला। मुझे इसको इस प्रेगनेंसी में एंटीनेटल मैनेजमेंट करनी है। अब मैनेजमेंट तुम्हारी सारी एंटीनेटल है। आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस सिर्फ डायग्नोज करने के लिए नहीं आएगा। ये कैसे आ सकता है? ये कैसे आ सकता है कि वो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस के साथ आएगी? यू हैव टू डिग आउट द कॉज। ठीक है। एक ऐसे आएगा कि वो अभी जो है उसका मिसकैरेज हो रहा होगा, ये कुंजी में सिनेरियो है, प्रीवियस उसके मिसकैरेजेस होंगे, अभी जो है उसको ब्लीडिंग हो रही होगी, वो कोई 7-8 महीने का सॉरी हफ्ते का उसका होगा, गेस्टेशन एमेनोरिया ब्लीडिंग के साथ होगी, प्रीवियस हिस्ट्री होगी। आप सारा एप्ला का पूछोगे एंड आप उसको बताओगे कि भाई अभी जो है हम आपको आपका हमल जाया करेंगे गोलियों के जरिए, और फिर हम जो है 6 हफ्ते के बाद फिर आपके फला 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 टेस्ट करवाएंगे। एक ऐसे दूसरे तरीके से ऐसे आएगा। ठीक है। तीसरा ये है बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के साथ आएगा, जिसमें सिनेरियो आपको लाउडली बोलेगा कि शी इज एप्ला, और वो पहले से देखो 2 उसके बच्चे हुए, वो एप्ला की ट्रीटमेंट के साथ ही हुए, बट विद द कॉम्प्लिकेशन। और सिनेरियो क्या था कि वो ओवरड्यू हो गई। मतलब इसमें मैनेजमेंट मेरी क्या होगी जुवेरिया? मुझे उसको प्रेगनेंसी उसकी प्रोलॉन्ग करनी है, उसको एप्ला के साथ लेके चलना है, उसकी स्ट्रिक्ट विजिलेंट मॉनिटरिंग करनी है, और मुझे उसको टर्म तक लेके जाना है। पिछली बार जो उसकी ईएनडी आईयूजीआर ड्यू टू अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हुआ है, मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना है। मुझे अपनी पेशेंट को टर्म तक लेके जाना है अच्छे तरीके से। ये मेरे इस सिनेरियो का जो मकसद है ना, वो ये है। ये सिनेरियो डॉक्टर से ये चाह रहा है। एग्जाम में हर सिनेरियो किसी मकसद के लिए फॉर्मुलेट किया जाता है। वो आपको पिक करना है हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में कि मैंने इसमें किस डायरेक्शन में चलना। ठीक है। किसी ने हैंड रेज किया था, मैं नाम भूल गई। आपका कोई क्वेश्चन था? नहीं डॉक्टर बलविशा मैंने किया था। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि वो एक मेरे पॉइंट ज़हन में आया था कि डॉक्टर ने ने बताया था कि देखें जैसे अब इन्होंने वो पीसीओ की हिस्ट्री ली है ना, तो इसमें जब आपने बस यही पूछ लिया कि साइकिल उसका रेगुलर है और वो कंसीव उसने स्पॉन्टेनियस लिया, तो ये तो हमारा इसी से भी रूल आउट हो गया है अगर हम साथ में करना भी चाह रहे हैं तो ये अच्छा, उसके बाद एक और बात। अब मैं जवेरिया तुमसे एक सवाल है मेरा। आपने जब आगे जाके डिटेल में उससे पूछा कि आपके टेस्ट इन्वेस्टिगेशन जब आपने पूछी, आपको हादिया ने दिया उसका एप्ला का सिर्फ एक टेस्ट हुआ। जी। ठीक है। अगर आप उससे हिस्ट्री में ये बात पूछती ना कि आपके टेस्ट हुए थे, वो क्या 2 टेस्ट हुए थे 3 महीने के गैप से, तो वो आपको उस वक्त बताती डॉक्टर साहब मेरा एक टेस्ट हुआ, दूसरा टेस्ट क्यों नहीं हुआ था? यू कैन आस्क। या फिर चलो अभी भी अगर आपसे मैं अभी भी पूछूं कि इसका एक ही सैंपल लिया था, वही पॉजिटिव आया था, और फिर बाद में इसको ट्रीटमेंट्स दी गई, तो आपका इस पे क्या कमेंट्स है? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो यही है ना कि आपके 3 महीने के गैप से 2 टेस्ट पॉजिटिव होने चाहिए। अब आपको क्या करना हाँ है? जी, वैसे कोई कंसर्न है आपका, या बस आप इसको एप्ला लेके चलोगे? अगर उसके जो प्रीवियस जो एक लाइव इशू था और एक अर्ली न्यूनेटल डेथ थी, अगर वो लोप्रिन और उसके ऊपर लो मोलेकुलर वेट हेपरिन पे प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई है, तो इसका मतलब है कि उसको एप्ला है पेशेंट को। शाबाश, शाबाश, बसो आप। देखो, अगर ऐसा सिनेरियो आपको मिल जाता है ना कि एक टेस्ट उसका पॉजिटिव है और पेशेंट को वट एवर द रीजन, कुछ भी हो सकता है, कोई कोई भी रीजन होता है ऐसा। ऐसा जब मैं तैयारी करी थी ना, तब मेरे सामने भी ऐसे एक केस आया था। पेशेंट का एक टेस्ट पॉजिटिव था, फिर उसको जो है इसी तरीके से ट्रीटमेंट मिल गई थी, एंड शी वाज प्रॉपर एप्ला। अब एक पेशेंट का पहले से अगर एक सैंपल पॉजिटिव है, तो आप उसको फिर एप्ला लेके चलोगे? आपको अब दूसरा कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। उसकी पिछली प्रेगनेंसीज जो थी वो सक्सेसफुल रही, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन पर और एस्पिरिन की ट्रीटमेंट पर। और मैंने ये कहीं पढ़ा भी था किसी अमेरिकन गाइडलाइन में कि 3 साल के ड्यूरेशन में जिसका भी ये इवेंट होता है ना, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस वाला या कोई भी एपीएलएस का इवेंट होता है क्लिनिकल क्राइटेरिया में से, इसके 3 साल के अंदर अंदर अगर एक भी सैंपल पेशेंट का पॉजिटिव होता है ना, शी इज एप्ला पॉजिटिव।
इसका मैं रेफरेंस आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल तुमने सही जवाब दिया है, यही मैं जानना चाह रही थी तुमसे। मैडम जी आसिया। इसमें मैडम ये बात मैडम डॉक्टर नाहिद ने भी बताई थी, क्लियर की थी कि अगर प्रेगनेंसी में इसका तो खैर एक टेस्ट पॉजिटिव भी था ना, लेकिन डॉक्टर नाहिद ने कहा था कि इवन अगर उसकी हिस्ट्री भी सजेस्टेड है ना कि रिकरेंट है और उसको आईयूडीज हैं या स्टिल बर्थ है, और आप उसको एम्पेरिकली और कोई और कॉज आपको नहीं मिल रहा है, तो हम आपको उसको एप्ला की ही ट्रीटमेंट देंगे। और फिर उसके बाद क्योंकि प्रेगनेंसी में डाइल्यूशन होती है और डाइल्यूशन की वजह से एप्ला नेगेटिव भी हो सकता है और उसका हमें इंक्रीज टाइटर ना मिले, फिर आप पोस्ट डिलीवरी इस पेशेंट को दोबारा से इसका जो है ना वो 4 वीक्स पे इसका टेस्ट रिपीट करेंगे एप्ला का, और फिर आप कंफर्म करेंगे और फिर उसकी पूरी जो है ना वो उसकी 3 मंथ्स की जो है ना वो उसका प्रोफाइल एक्सेस कंप्लीट करेंगे। लेकिन डॉक्टर मतलब उन्होंने पलविशा कहा ये था तो गाइडलाइन में लिखा है कि कहा था अगर उन्होंने एप्ला कहा था कि नेगेटिव ना है तो हम फिर नहीं पोस्ट, ट्रीटमेंट देना। मैडम उन्होंने कहा था कि ना आप जो है ना हिस्ट्री, बल्कि हादिया भी थी इस क्लास में, उन्होंने सना भी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर जो है हिस्ट्री सजेस्टेड भी ना हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, और जो है वो एक टेस्ट तो खैर बहुत ही सफिशिएंट है, और प्रेगनेंसी में उन्होंने कहा था हम टेस्ट रिपीट नहीं करवाते क्योंकि हाँ, डाइल्यूशन हुई भी प्रेगनेंसी होती में है, तो आप उन्होंने नहीं ये बात कराओगे बोली, टेस्ट। देखो उन्होंने ये बात जवेरिया, बोली थी कि इसको इसका आप इसको मैं अभी तुम्हें आप आसान रिपीट नहीं अल्फाज में, करवाओगे। जवेरिया मैं तुम्हें इसको आसान अल्फाज में समझाती हूँ। देखो, लेट्स सपोज तुम्हारी पेशेंट ने नहीं ली ट्रीटमेंट कोई पहले से, ठीक है, जी लेकिन तुम्हारा जो क्लिनिकल क्राइटेरिया है वो पूरा हो रहा है, उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेजेस हैं लेस देन 10 वीक्स, ठीक है, और उसके बच्चे मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल थे, ओके, एंड उसको 34 वीक से पहले जो है उसका मिसकैरेज हो गया, लेट्स सपोज क्लिनिकल क्राइटेरिया पे हम चलते हैं, ठीक है। तो और अब पेशेंट ओवरड्यू होके आ गई, उसने पहले ना टेस्ट करवाया, उसको बोले गए टेस्ट लेकिन उसने टेस्ट नहीं करवाया, क्लिनिकल क्राइटेरिया आपका पूरा हो रहा है, लेकिन अभी भी फिर वो प्रेग्नेंट होके आ गई, अब आप टेस्ट तो नहीं करा सकती जवेरिया, तो आप क्या करेंगी, आप जी चांस जी लेंगी, आप अपनी पेशेंट को लो मोलेकुलर वेट हेपरिन स्टार्ट करा देंगी, क्लिनिकल क्राइटेरिया तो पूरा हो रहा है ना, आप स्टार्ट कराओ। और क्योंकि ये क्लिनिकल के हिसाब से तो एप्ला बन रही है, तो ये बेसिकली एम्पेरिकल है, जो कि क्लिनिकल ये यूज की जाती है, गाइडलाइंस में इनका इसका कोई जिक्र नहीं है, ये हम ऑन जी द बेसिक क्लिनिकल ग्राउंड्स हम करते हैं, जो हमारे मरीज इस तरीके से आते हैं, दूर दराज के होते हैं, वो प्रॉपर फॉलोअप भी नहीं करते, आपके एप्ला आपको क्लिनिकली लग रहा है, यू आर सस्पेक्टिंग, आप उसको लो मोलेकुलर वेट हेपरिन स्टार्ट करा दो, फिर आप वर्कअप उसका बाद में करवा लो टू डायग्नोज इट प्रॉपरली। वैसे ही वो जब चलेगी, प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी, प्रोलॉन्ग होगी, तो आपको पता चल जाएगा यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आसिया, यू वांट टू स्पीक अगेन? नहीं मैडम, यही बात मैं बस ओके, बताना चाहिए कि आप भी इसको कंफर्म कर लें, क्योंकि मेरे जहन में अब तक यही कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि हमें यही है प्रेगनेंसी में दोबारा आसिया, एक्स्ट्रा का यही है। टेस्ट नहीं कराना, हाँ, पोस्ट ये डिलीवरी करवाना है। जब हम मैं तैयारी करी थी ना एग्जाम की, तो ये जब सिनेरियो इस तरह का मेरे सामने था, तो मैंने ग्रुप में पूछा था, लेकिन मुझे उस वक्त किसी ने जवाब दिया नहीं था, तो फिर बाद में फिर मैंने इसको सर्च आउट किया, तो यस, अमेरिकन गाइडलाइन सेज, और वो ये भी कहती हैं कि अगर उसका एक सैंपल भी पॉजिटिव है तो दी शी इज पॉजिटिव, एप्ला पॉजिटिव, लेकिन इसको आप एग्जाम में कोट नहीं करोगे, इट्स जस्ट के अगर ऐसा कोई सिनेरियो है और आपसे क्वेश्चन किया जाता है, देन आप जवाब दो, ऐसे आप नहीं बोलोगे। एग्जाम में सारी आपने जो है ना लिटरेचर अपनी गाइडलाइंस वाली ही बात करनी है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, पोस्ट डिलीवरी आफ्टर 6 वीक्स, नॉट बिफोर दैट। ठीक है जवेरिया, यहाँ तक क्लियर है सारी बातें, बस अपनी जी हिस्ट्री जी का जो है ना, और हाँ एक बात और, अपनी एंशियसनेस अलग बात है, उस पे कंट्रोल करना है, पेशेंट को एक्टिव लिसन करना है, अगर एक बात आप बार बार मरीज से पूछोगे तो एग्जामिनर समझेगा कि आप उसको सुन नहीं रहे हो, यू आर नॉट एक्टिवली लिसनिंग। सो थोड़ी सी ना अपनी इसकी प्रैक्टिस करनी है कि मैंने जो उसने बोलना है ना, मैंने उसको रजिस्टर करना है, और बार बार फिर उससे ये बातें मैंने नहीं पूछनी, ठीक है। और हाँ, हाँ, वो आपको मेरे माइंड में ही नहीं था ये आपको जो है डायग्नोस्ट। ना जो आपके रोल प्लेयर होते हैं, दे गिव्स यू द क्लूज, वो आपको आगे चलाते हैं। लेट्स सपोज मेरा वी बैक का, जैसे मेरे एग्जाम में वी बैक की काउंसलिंग आई थी, तो मैं उससे उसकी हिस्ट्री, शी वाज 36 वीक्स, तो मैं उससे उसकी ट्राइमेस्टर स्पेसिफिक हिस्ट्री ले रही थी, क्योंकि हमने हमने तो लेनी है ना, तो काउंसलिंग करने के लिए हमने तो लेनी है, तो वो मुझे बोल रही थी सब सही था, 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 तो मैं समझ गई, जब उसने मुझे तीसरी बार बोला ना सबसे, मैं समझ गई कि मुझे आगे चला रही है,
मुझे अब इससे वीवैक के बारे में ही बातें करनी, ठीक है। तो इस तरह से अपना दिमाग को हाजिर रखना है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपकी मैनेजमेंट पर। चलो अब इसको मैनेज करो, कीपिंग इन माइंड द इन्वेस्टिगेशंस जो आपको रिपोर्टें दी गई। शी इज ठीक है 1 week overdue, शी इज एप्ला पॉजिटिव एंड BP रेस्ट ऑफ raised and इन्वेस्टिगेशन anemic में। जी I will offer support to my patient and I will empathetically approach my patient counsel regarding the current diagnosis that she is having the high risk pregnancy as she is already the known case of the APLA, which is an autoimmune disease. And side by she is having the anemia and the raised blood pressure right now, which is 140/90. And I will detain the patient for at least 3 to 4 hours so that I can recheck the blood pressure to confirm that is it either the raised blood pressure or not. And I will involve the multidisciplinary team including the senior obstetrician, the radiologist and the psychologist and also the medical specialist. And then I will ask the patient for the lifestyle modification including maintaining the BMI, exercise, decrease if she is taking the caffeine then decrease its amount and decrease the stress. And then I will give supplements including the calcium, vitamin D and the folic acid to my patient as my patient is having the urine for pregnancy test positive. So I will offer the aspirin 150 milligram and the low molecular weight heparin according to the weight of the patient in the current pregnancy. And I will also tell the feto-maternal implications of the 3 comorbidities that she is having, she can develop the preeclampsia or the deep venous thrombosis, abruption, increased risk of the preterm delivery, and in the fetus there can be the chances of the low birth weight babies, intrauterine growth restrictions, stillbirth, and the intrauterine death. And I will ask the patient for the and I will counsel the patient regarding the dietary intake to improve the hemoglobin status. And then my patient will be managed in the consultant-led unit. If on the second reading her blood pressure is not raised, then I will ask the patient for the frequent 2 weekly visit. On each visit, I will be looking for the signs of the blood pressure and the urine for protein, intrauterine growth restriction and any other complications. And then I will start the serial growth scans from 26 to 28 weeks. I will take the pregnancy as close as to the term, and at 34 to 36 weeks I will discuss the time of delivery, mode of delivery, the steroid cover, and the breastfeeding and the contraception with the patient. And I will guide the patient regarding the intrapartum care as she is having the previous 2 cesarean section. This time she will be delivered at if no other maternal or the fetal concern, then she will be delivered at 38 weeks via lower segment cesarean section in the consultant led unit in the with the MDT approach. And I will also ask the patient to stop the heparin 12 hours before the surgery. And the after the surgery, enhanced recovery program will be implemented. Early mobilization, test stockings, breastfeeding, contraception, avoiding the OCPs, and continue the low molecular weight heparin. If with the close monitoring, including the INR, when the INR becomes 2.5, we can shift her to the warfarin for at least 6 weeks postpartum. And the patient will be called for the follow-up at 2 to 6 weeks, and she will be guided for the future pregnancy. Right now, I will be prescribing the folic acid, aspirin, and the low molecular weight heparin to the patient and the consultant booking. ओके जवेरिया, जवेरिया आपने पेशेंट को काउंसिल किया, उसको कॉम्प्लिकेशंस बताई। इसके साथ एक चीज ऐड कर लो कि आप जब भी हाई रिस्क का बताओगे ना, जैसे हम उर्दू में काउंसलिंग करते हैं इसी तरीके से हम लोग
डॉक्टर पलवशा, इसमें हम वी बैक कर सकते हैं? यार हम काउंसल कर सकते हैं पेशेंट को, पेशेंट की चॉइस है। नहीं मतलब शॉर्ट केस में तो हमें एक ही बात बतानी है ना, हमने तो सिर्फ उस पेशेंट को मैनेज करना है। तो आप ये बताओगे कि आई विल काउंसल माय पेशेंट। अब उसका लास्ट बेबी बॉर्न कब था? अगर उसका लास्ट बेबी बॉर्न मोर देन 1 year अगो था तो आप पेशेंट को काउंसल कर सकते हो रिगार्डिंग आप कर डिलीवरी। सकते हैं। ये बताओगे मैडम, I will counsel my patient regarding the mode of delivery as her last baby born was, let's suppose, more than 1 year ago. Then I will offer her the VBAC option of VBAC as well as cesarean section. ठीक है, फिर मैडम बोलेंगी कि तुम क्या चुनोगी अपने पेशेंट के लिए। फिर डिपेंड करता है मेरा पेशेंट, उन्होंने फाइंडिंग क्या दी है। इफ एवरीथिंग वाज वेल आई कैन गिव हर ट्रायल ऑफ लेबर, बट क्योंकि ये पेशेंट ऑलरेडी हेपरिन पे होती है, हमें प्री प्लान सब करना होता है, हमें हेपरिन 24 आवर्स पहले स्टॉप करनी होती है, तो बेटर है कि वो हमारे कंट्रोल में होता है। लेबर आप पहले स्टॉप कर दोगे, लेबर उसको स्टार्ट ना हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर उसका बेबी भी कॉम्प्रोमाइज होगा तो फिर तो आप स्ट्रेट अवे सिजेरियन सेक्शन की तरफ ही जाओगे, पेशेंट ऑलरेडी वेरी एंशियस है। ठीक है, अगर मुझसे पूछोगी मैं इसका सीजर करूंगी क्यों, मुझे उसकी हेपरिन को कंट्रोल करना है। जवेरिया आ गई हो? हाँ जी मैं इधर ही हूँ। ओके जवेरिया, आपने स्टार्ट में कहाँ थी? मैं थी उसकी काउंसलिंग पे। देखो आप बता रही हो सारी इम्प्लीकेशंस, फीटल मैटरनल सारी, पेशेंट तो बड़ी परेशान हो जाएगी ना। उसके साथ आप बोलो बट आई विल रीअश्योर माय पेशेंट दैट दीज complications are treatable with vigilant monitoring and with low molecular weight heparin and aspirin. There are good outcomes for the baby and the mother as well. ठीक है, हम्म, जब ठीक है। भी आपने ओब्स के केस में fetal maternal complications बतानी है, when you are saying that I will counsel my patient that this is a high risk pregnancy with maternal and fetal implications, ये सारी बताकर एक्सप्लेन करके फिर आप बोलोगे बट मैडम आई विल रीअश्योर माय पेशेंट दैट these all of these complications can be monitored and can be managed with vigilant monitoring and proper care in a tertiary care. This will be a very good impact कि आप कॉन्शियस हो कि मैं हाई रिस्क, मैं अपने मरीज को हाई रिस्क भी सारी चीजें बता रही हूँ, उसको अलार्म भी कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं उसको काम भी कर रही हूँ। तो आपकी ये पेशेंट तो बड़ी परेशान है ना। जी। ठीक है ना, तो हम लोग जब तैयारी करते हैं, प्रेजेंट करते हैं ना, हम थोड़ा सा एम्पैथी वाला फैक्टर भूल जाते हैं क्योंकि हम बहुत प्रेशर में होते हैं। दिस इज वेरी नॉर्मल। मैं बस एड ऑन कर रही हूँ चीजें, सिर्फ एड ऑन। तुमने मैनेज बहुत अच्छा किया, तुमने हर चीज को लेके साथ चली हो। तुमने शुरू में उसको तुम्हें पता था इसकी 9.5 है, इजीली डाइट से मैनेज हो सकती है। तुमने अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए उसको फॉलिक एसिड दे दी, उसको डाइट का भी मेंशन कर दिया। दो तुमने बहुत देर से किया, लेकिन इधर ही कर दो अभी, जब पता चल गया ठीक ना है। 9.5 HP, इधर ही बोलो मैडम आई विल। एक मिनट आसिया, एक मिनट आपका लेती हूँ मैं क्वेश्चन, मैं चीजें भूल जाऊंगी। अच्छा, तो इधर ही तुम जो है ना उसके अनीमिया को एड्रेस कर दो, बता दो कि मैडम एज माय पेशेंट्स हीमोग्लोबिन इज 9.5, सो आई विल काउंसल माय पेशेंट दैट शी शुड हैव गुड डाइट। ठीक है, और आई विल पुट हर ऑन फॉलिक एसिड, और उसको जो है आप विटामिन, लो मेडिकल वेट हेपरिन आप स्टार्ट करा रहे हो, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारी चीजें आपने दी। ठीक है, उसका मेंशन कर दो टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। अच्छा, फिर आपने सारा डेटिंग स्कैन करी, फिर आपने पूरा उसको मॉनिटर किया, आपने उसको जो है 2 वीकली बुलाया। अच्छा हाँ, आपने उसका जो दूसरा फैक्टर था हाइपरटेंशन वाला, आपने बोला मैं उसकी रीडिंग्स चेक करूंगी पेशेंट की। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपको ये रूल आउट करना है कि ये पेशेंट क्रोनिक हाइपरटेंसिव तो नहीं है, क्योंकि उसके पिछले बड़े बैड आउटकम्स थे। तो आपने उस चीज को भी एड्रेस कर दिया, फिर आप प्रॉपर उसको लेके गए हो। एक चीज जरूर मेंशन करनी है, ये जितने भी वीटी वाले वो होते हैं ना, आप बोलो ऑन ईच एंटीनेटल विजिट आई विल assess her for VTE. ठीक है, आई विल डू हर VTE रिस्क असेसमेंट, इसकी करनी है, एंड इंक्वायर अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ लो मोलिकुलर वेट हेपरिन।
ठीक है, जी। बाकी आप बिल्कुल सही लेके गई हो। आपने बोला इफ एवरीथिंग गोज वेल देन आई विल टेक हर टू द टर्म कंप्लीटेड 38। आप 36 पे उसके साथ दोबारा बैठी, आपने हर चीज डिस्कस की, लेकिन आपने एस्पिरिन स्टॉप नहीं की, आप भूल गई। नहीं नहीं, हाँ एस्पिरिन नहीं की, हाँ जी। एस्पिरिन आपने स्टॉप नहीं की, ठीक है। लेकिन डॉक्टर पलवशा, जो न्यू गाइडलाइंस है वो ये नहीं कहती हैं कि एस्पिरिन हम टिल मतलब डिलीवरी दे सकते हैं, लास्ट डे वो ऑफ। IUGR में आप दे सकते हो। ठीक जो है। जो FGR की गाइडलाइन है ना, उसमें देखना, उसमें टिल टर्म तक दे रहे हैं, इसमें आपको 36 पे स्टॉप करना है, ठीक ठीक है। है। अच्छा, जी। फिर जो है आपने उसकी हेपरिन स्टॉप कर दी, बिल्कुल सही, 24 आवर्स पहले। एंड फिर जो है क्या कहते हैं, आपने उसका सारा मैनेज करके अब आप आ गई पोस्ट डिलीवरी। पोस्ट डिलीवरी मुझे समझ नहीं आई, पहले मुझे ये बताओ, इज योर पेशेंट इज टेकिंग थेराप्यूटिक डोज और प्रोफाइलेक्टिक डोज? प्रोफिलैक्टिक डोज लेगी ना पेशेंट? देन जस्ट टेल मी, प्रोफाइलेक्टिक डोज को आप स्टॉप करते हो या फिर आप उसको जो है ब्रिज करते हो? ब्रिजिंग आपको किस में चाहिए, किस डोज में चाहिए, INR के साथ? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी डॉक्टर पलवशा, ये तो नोन केस है ना, डायग्नोज केस है, तो इसमें हम थेराप्यूटिक डोज देंगे। नाउ यू नीड अ कॉन्सेप्ट। शी इज एप्ला, बट उसका कोई VTE इवेंट नहीं है, उसको सिर्फ प्रेगनेंसी आउटकम्स बैड होते हैं एप्ला की वजह से, अदरवाइज शी इज नॉर्मल। शी जस्ट टेक्स दिस प्रोफाइलेक्टिक डोज इन द प्रेगनेंसी विच यू आर स्टार्टिंग नाउ। अगर इसका VTE का इवेंट होता, ये ऑलरेडी हेपरिन पे होती, ये थेराप्यूटिक डोज ले रही हम्म होती। हम्म तो हम्म इससे पहले ले, ये एक टिप है, पहले से इंजेक्शन लगा रही है मींस के वो थेराप्यूटिक डोज ले रही है एप्ला का, उसको और भी फिर बड़े मसले होने हैं। दो तरह के डोज होते हैं, ये RPL जो होता है ना, अगर इसमें VTE का इवेंट पेशेंट को नहीं है तो वो थेराप्यूटिक डोज नहीं ले रही होती, वो बस प्रोफाइलेक्टिक ही ले रही होती है, ठीक नहीं है। लेती है, ठीक हाँ है, जी, नहीं मैं समझ गई। समझ गई ना? हाँ, तो हम्म। यहाँ पे आप जी ये जी जी। थोड़ा सा यहाँ पे आपका क्लैरिटी आपको चाहिए। बस आप बाद में जो है क्या कहते हैं, जैसे ही इसकी ओवर हो जाएगी उसके बाद जो है, अगर वो नॉन एप्ला है फिर आप कंटिन्यू करो, फिर आप रीस्टार्ट करो। अदरवाइज अगर थ्रोम्बोसिस नहीं है तो बस हम 10 डेज तक रखते हैं उसको, और अगर है तो फिर आप प्रॉपर उसका 6 हफ्ते तक, अगर मतलब उसको कोई VTE का इवेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, खुदा ना खास्ता, फिर आप उसको कंटिन्यू करते हो 6 वीक्स। लेकिन देखें डॉक्टर पलवशा, जिस तरह इसकी प्रीवियस बैड स्टडी हिस्ट्री है, IUGR है, BMI इसका चले इतना ज़्यादा नहीं है, 28 तक है, तो इन सारे रिस्क फैक्टर्स को मिला के भी अगर मेरे पास 4 फैक्टर्स बन रहे हैं तो फिर मैं 6 वीक्स नहीं करूंगी इसका? एप्ला खुद ही एक 3 वीक्स 3 स्कोर है ना एप्ला, लेकिन वो एप्ला विद जी। VTE स्कोर 3 है। आप दोगी इसको 10 डेज तक दोगी अगर उसको VTE का इवेंट नहीं है, 6 वीक्स तक दोगी अगर उसको कोई VTE का इवेंट होता है। लेकिन मैं कह रही हूँ, अगर मैं इसके और साथ जो इसके कॉमोर्बिडिटीज हैं उनको भी देख के अगर मैं ऐड ऑन करूँ तो फिर मेरे हाँ, 6 वीक्स नहीं बनते? VTE रिस्क असेसमेंट तुम करती हो, बिल्कुल सही है, जिस जो हम कर रहे हैं VTE रिस्क असेसमेंट, अगर उसमें तुम्हें स्कोरिंग मिलती है फिर तुम दो, फिर तुम 6 वीक्स तक दो, अगर आपका स्कोर जो है ना वो 3 से ज्यादा ठीक है है। फिर आप दे। और डॉक्टर पलूषा, एक चीज पूछनी थी कि इसके अंदर सप्लीमेंट्री प्रोजेस्टेरोन का कोई रोल है, वो मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं? वो थ्रेटेड मिसकैरेज में ही जाएगा हाँ, अगर पेशेंट आती है उसके हाँ, साथ? हाँ, वो उसमें आएगा, और अगर वो और मैं ब्लीड करती है पेशेंट, करंटली उसको ठीक है, bleeding हो, और इस पेशेंट को मैं RPL सेंटर में भेजूंगी या नहीं भेजूंगी? आपके पास आप RPL सेंटर है अलग से? नहीं। बस, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर डिस्कशन आए उसमें बताएंगे हम? क्या नहीं, अच्छा। अनलेस कोई चीज ऐसी नहीं है ना रिपोर्ट करने वाली, जैसे OHSS होता है पेशेंट को, तो वो तो पक्का पक्का वहां पे लिखा हुआ है उनकी गाइडलाइंस में कि OHSS हो गया, क्यों, जो कि होना नहीं चाहिए, प्रिवेंटेबल एक चीज है, तो वो उनको रिपोर्ट करनी होती है फर्टिलिटी सेंटर्स में। तो मुझसे एग्जामिनर ने पूछा था कि मेरे एग्जाम में कि इसका तुम क्या करोगी, किस कुछ करोगी, तुम रिपोर्ट करोगी कुछ, एनीथिंग?
क्या करना है तुम्हें, क्लिनिकल गवर्नेंस में तुम क्या करोगी? तो मैंने बोला मैडम उनके तो प्रॉपर एक ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एसोसिएशन होती हैं, वहां पर वो लोग जो है विद इन 12 आवर्स वर्बली इन्फॉर्म करते हैं और 24 आवर्स में वो रिटर्न में दे देते हैं। बट क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं ये करूंगी कि जितने भी फर्टिलिटी सेंटर्स हैं मैं उनमें जो है वो रिपोर्ट करूंगी, और पर्टिकुलरली जिस सेंटर से मेरे पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिए मैं वहां तो लाजमी लाजमी रिपोर्ट करूंगी। ये मैंने जवाब दे दिया था उस वक्त, क्योंकि वो तो रिपोर्ट होना चाहिए उस पर, तो फिर ऑडिट हो, क्योंकि ऑडिट होते हैं ना, क्यों हुआ पेशेंट को HSS, ठीक है, यहाँ पे नहीं। Okay. और एक और चीज, VT असेसमेंट जो मैंने आपको कहा पूरी एंटीनेटल विजिट में भी करते रहोगे आप, पोस्टनेटल भी फौरन से VT की रिस्क असेसमेंट करोगे, क्योंकि पेशेंट तो है ना रिस्क पे VT के। इस ठीक, पेशेंट का एडमिशन तो नहीं बनता था कि एडमिट करना था इसको? क्यों करना था, क्या ग्राउंड्स हैं आपके पास एडमिट करने के? मैं सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह से कंफ्यूज हुई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले उसकी सेकंड रीडिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद। अभी आप उसको जो है 4 घंटे बाद दोबारा रीडिंग लो, और अभी विजिलेंटली उसका जो है BP मॉनिटर, पेशेंट को ही बोलो कि अपना जो है BP चार्ट अपना बनाए, और अगर वो आता है 1 हफ्ते के बाद ही आ जाए, इस पे तो हम इंडिविजुअलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कॉन्शियस हूँ उसका पिछली बार दोनों बार ही उसके बैड आउटकम से, तो मैं उसको बोलूँ भाई 1 हफ्ते के बाद अपना ये जो है ना सुबह शाम चेक करना है, मेरे पास लाना, मैं चेक करूँगी। जी आसिया। मैडम मुझे सिंपल सी बात पूछनी थी कि ना जो है वो इसमें हम लोग तो अभी जो लेटेस्ट बुक्स में लिखा होता है कि हम फैक्टर 10 लेवल से मॉनिटरिंग करनी चाहिए, तो हम वो बताएंगे या हम ये बताएंगे कि पीटी INR से जो है वो डोज की मॉनिटरिंग करेंगे? नॉर्मली हम मॉनिटर नहीं करते अनटिल अनलेस एक्सट्रीम्स ऑफ वेट हैं पेशेंट के, मोर देन 90 kg, हम्म। लेस देन 50 kg, और अगर उसको रिकरेंट VTE के इवेंट्स हुए हैं पेशेंट को, तो फिर हम मॉनिटर करते हैं, अदरवाइज लो मोलिकुलर वेट हेपरिन के लिए नहीं करते। हाँ, अगर पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, फिर आप मॉनिटर कर सकते मैडम ईच ट्राइमेस्टर में नहीं करवाएंगे? एट द बिगनिंग हैं। ऑफ ईच ट्राइमेस्टर नहीं, जब हम देयर इज सारी नो बेसलाइन सच डिटेल करवाते हैं? रिकमेंडेशन, नहीं, देयर इज नो सच अच्छा रिकमेंडेशन। मैडम, और एक और बात कि जब हम ये पेशेंट की इसकी प्रीवियस हिस्ट्री थी, तो इसको तो हमने जैसे इसका PT पॉजिटिव था, इस दफा हमने इसको वही करना चाहिए था ना कि स्टार्ट इसकी शुरू करवाते और फोलिक एसिड करवाते, और जैसे ही फीटल हार्ट्स आते तो उसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन प्रोफिलैक्सिस स्टार्ट करवा देना। यही है ना इसका ये जो स्टैंडर्ड? पुरानी चीजें हैं ना कि कार्डिक एक्टिविटी आए तो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, और ये EBM में, मुझे याद है EBM में लिखा हुआ था, गाइडलाइन में सीधा यही है EDM कि में जैसे ही वो PT पॉजिटिव होगी आप दोनों चीजें स्टार्ट करवा देंगे उसको। मैडम मरीज जो है ना मैडम, मेरे जो पर्सनल भी मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि अगर हम ऐसे करते हैं ना, और अगर खुदा ना खासा मरीज को स्पॉटिंग हो गई, तो वो कहती है डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए थे, तो उसकी वजह से जो है ना वो बच्चा जाया हो गया। उसके लिए भी प्रॉपर काउंसिल करना होता है ना यार। क्योंकि वो आप जो है ना देखिए, काफी कुछ इंटरनेट से पढ़ के आते हैं मैडम, मरीज आजकल ना इंटरनेट से बहुत कुछ पढ़ के आते हैं, और फिर वो ना उसके क्वेश्चंस फिर पूछते उसके हैं, लिए और तुम अपने थोड़ी बहुत भी एक्सपीरियंस पढ़े के लिखे होते लिहाज हैं ना, से या फिर जो यंग देखो, आजकल के जो आसिया अगर यंग तुम बच्चे नहीं होते हैं दोगी ना। तो भी तो वो मिसकैरेज हो सकता है ना। मैडम मैंने पहले दिया था एक दफा, फिर मैंने ना नहीं दिया उसके बाद कभी इस तरह, फिर मैं जब कार्डियक लेकर आ जाता था तो उसके बाद भी मैं इसको ना स्टार्ट करती थी बिल्कुल अच्छी तरह से, जब 7-8 वीक्स पे हम्म, मुझे बहुत अच्छी हार्ट बीट नजर आ जाती थी, हम्म, तो फिर मैंने लो मॉलिक्यूलर वेट दी है पेशेंट को, एक पेशेंट को। उससे पहले मैंने एक दो को दी थी, तो और उसके साथ उनको डिफेस्टॉन भी शुरू करवाई, और उनको जो स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई, फिर उनका लॉस हो गया, तो फिर उनमें से तो एक जो थी मुझे अच्छी तरह याद है, वो पेशेंट छोटी सी लड़की थी 19-20 साल की, और वो इंटरनेट से इतना कुछ पढ़ के आई थी ना, तो उसका हस्बैंड तो बहुत पैसे वाला था, तो मैं तो बहुत परेशान हो गई थी उस दफा, तो फिर मैंने उसके बाद तौबा कर ली थी। डोंट वरी, तुम अपने क्लिनिकल उसमें तुम ये कर सकती हो, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन आप एग्जाम में वही बातें बताओगी तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, डोंट तो वरी। मैंने इसीलिए तो मैडम आपसे क्वेश्चन पूछा ही है अभी कि मैं एग्जाम में ये बताऊंगी, कि यही बताने के लिए तो पूछा है अभी कि एग्जाम में तो यही बताऊंगी कि जैसे ही प्रीटी हाँ, पॉजिटिव होगा तो दोनों चीजें शुरू कर लेंगे, यही यस, पूछ इसीलिए आपको पूछा ही दोनों है, चीजें स्टार्ट करानी है जी। दोनों चीजें स्टार्ट करानी है। और मैडम ये जो अभी आप कह रही थी ना कि 10 डेज से बंद करेंगे, तो मुझे तो ये की बात ज्यादा मतलब रीजनेबल लग रही है कि जैसे इस पेशेंट में BP का भी इशू है और BMI भी अगर ज्यादा है, तो फिर तो हमें 6 वीक तक तो प्रोफाइलेक्टिक देना चाहिए ना? कितने टाइम तक?
6 वीक्स तक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन अरे प्रोफाइलैक्टिक इसमें ना मुझे थ्योरेटिकली मिला तो था 6 वीक्स तक, लेकिन उसके बाद फिर जब हमने प्रेजेंटेशंस दी और हमने ये अपने मेंटोर्स वगैरह के साथ जो भी डिस्कशन वगैरह किए ना, बाद में किसी को कंटिन्यू कराया नहीं गया, किसी ने ये नहीं बोला कि करो। लेकिन हाँ, थ्योरेटिकली लिखा हुआ था कि आप अगर वीटीई का इवेंट होता है या उसके वीटीई का स्कोर जो है वो 3 से ज्यादा बनता है, तो फिर आप 6 हफ्ते तक आप उसको स्टार्ट करवाओ। इस सही कह रही हो, इस पेशेंट का बनता है स्कोर। इसको प्रीवियस हिस्ट्री भी है आईयूजीआर की, हाइपरटेंशन की, तो इसको आप सेफली इसको 6 हफ्ते तक करवा सकते हो। लेकिन गाइडलाइन में ये भी नहीं लिखा हुआ, वो वीटीई की गाइडलाइन में लिखा हुआ है, लेकिन आरपीएल की गाइडलाइन में नहीं लिखा हुआ। तो हमें दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो फिर बिल्कुल सही कह रही हो, आप 6 हफ्ते तक उसको स्टार्ट करवा सकते, सॉरी कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर पलवशा, मेरा एक क्वेश्चन है जी। कि जिस तरह हमारे कंट्री में पेशेंट बहुत पुअर होते हैं, अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है लो मोलेकुलर वेट हेपरिन के लिए, तो हमें उनको क्या करना चाहिए? एडमिट करना चाहिए और उनको हेपरिन उस बेसिस पे देना चाहिए, या क्या मतलब, अगर हमें हमारे सिचुएशन के हिसाब से, हमारी कंट्री के हिसाब से पूछें? नहीं, आप किस लिहाज से कह रही हो? क्योंकि पॉपुलैरिटी जिस तरह पूछ रही हो मेरा आप? हाँ, नहीं नहीं, जिस तरह मेरा मतलब जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की है ना, वहाँ पे हम लोग पेशेंट को एडमिट करते थे, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का इशू आता था, वो लोग हेपरिन परचेज नहीं कर सकते थे। तो फिर हम लोग एडमिट करके जो है ना उनको लो मोलेकुलर वेट हेपरिन लगाते थे, जो बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स होते थे। तो वो समटाइम्स ऐसे होता था कि हमें उन्हें 4 5 6 मंथ्स भी एडमिट रखना पड़ता था पेशेंट्स को। तो मतलब मैं आप ये कह चीज रही हो पूछना कि चाह रही हूँ कि अगर आप लोग अफोर्डेबिलिटी का प्रोवाइड इशू करते थे पेशेंट को लो मोलिकुलर वेट हेपरिन? जी जी, डॉक्टर पलविशा क्या कह रही हैं? आप प्रोवाइड करते थे लो मोलिकुलर वेट हेपरिन हॉस्पिटल की तरफ से? हाँ जी, हॉस्पिटल हॉस्पिटल प्रोवाइड करता था। ओके, इस पे मेरे ख्याल से मैडम शहनाज ने ये बात शायद की हुई है हाईलाइट, कि हम लोग उनको एडमिट करते हैं, वो एडमिटेड रहते हैं और फिर हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो फिर यार क्योंकि प्रैक्टिकलिटीज है हमारे ना, सेटअप में प्रैक्टिकल यही होता रियलिटी था। है। हाँ, नॉर्मली तो। अच्छा, एक चीज और बता दें कि जी बोलो। जिस तरह अभी सिर्फ इसकी एक सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव थी और उसके ऊपर हम लोग लेके चले, अब इसकी प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, तो हम इसका सेकंड सैंपल करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? नहीं, क्या जरूरत है? द गोल इज अचीव्ड, ठीक। व्हाट्स द नीड? जी आदिया। ठीक है। जी आदिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर पलवशा। मेरा क्वेश्चन ये है, एक तो हमें इसमें जब लो प्रिंट स्टार्ट करनी है, हमने उसको 75 स्टार्ट करनी है या 150? और दूसरा 150। मुझे 150। और दूसरा मुझे ये पूछना है कि जो हम पेशेंट को लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन स्टार्ट करते हैं, इसकी डोज कैलकुलेट करने का कोई ट्रिक या कोई फॉर्मूला जो हम अप्लाई कर लें? तो मेरी बात सुनो, जो अब इसमें इसमें तुम लोगों ने भी यही अभी बोला है, इसमें जवेरिया ने भी यही बोला है कि उसके वेट के हिसाब से, जबकि गाइडलाइन में साफ साफ इनके लिए बस 40 मिलीग्राम फ्लेक्सिन है हम देते हैं, नोक्सापेरिड। और मैंने अपने क्लिनिकल में आरपीएल वालों को 40 फिक्स डोज है, ये इससे ज्यादा नहीं देते। और वो फिर वो जो बाकी है वो ये है कि अगर एबनॉर्मली वो बीएमआई ज्यादा या कम होगा तो फिर उसके लिए वो डिफरेंट होगा, वैसे हम 40 याद रखें। हाँ हाँ, अगर तुम वीटीई के लिए दे रही हो वो अलग चीज है, वो अलग चीजें हैं, फिर तुम उसके वेट से कैलकुलेट करोगे। इसमें पता नहीं क्यों आप लोगों ने क्यों नहीं मेंशन किया प्रॉपर डोज, क्लेक्सिन 40 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस, इसमें 40 मैडम बताओ। फ्लेक्सिन आते ही तो में फ्लेक्सिन 20 में आता है और 40 में आता है, तो हाँ 20 तो बहुत ही कम हो जाती है। वो तो हम सिर्फ उस वक्त देते हैं जब पोस्टमार्टम हमारे पास रिस्क हो, कोई पेशेंट है जिसको हमें पोस्टमार्टम हाँ, 7 to 10 डेज के लिए पोस्टमार्टम देना देते हो, हैं, तो जी जी 20 जी। एम जी 20 20 हाँ। एम जी का एक इंजेक्शन जो है ना वो रोजाना 7 दिन तक लगा देते हैं ना कम से कम। वो लेकिन वो भी कोई इसमें भी रिकमेंडेड आपने नहीं है बताया आसिया, कि वो कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट है, कुछ कंसल्टेंट्स को मैंने देखा है वो देते हैं, 2 3 दिन तक हाँ, देते हैं वो मैडम लोग। मैंने लगाई है अपनी पीजीशिप में, हमसे लगवाते थे वो, कम से कम जो लाता था तो उसको 5 इंजेक्शन तो वो लगवाते थे वो लोग हाँ। ना। कोई अगर डायबिटिक होता था या ओबीज होता था तो अभी, और मैडम इसमें 40 mg का भी आपने बताया कि 40 फिक्स है, वरना तो मैंने कॉन्सेप्ट वेट का बनाया हुआ था। आप अच्छा डॉक्टर आरपीएल पलवशा। वाली गाइडलाइन खोलो, उसमें आप फ्लेक्सिन का डोज देखो, इसको करेक्ट करो। आरपीएल में आपने जो प्रोफिलैक्टिक डोज देना है वो 40 मिलीग्राम देना है।
ठीक है, आपकी जो स्टेशन बनेगा ना इस गाइडलाइन से बनना है पूरा। हाँ जी। डॉक्टर पलवशा, मुझे ये पूछना था कि जैसे ये केस हमारे पास आया, उसने बताया कि मुझे इंजेक्शंस लगते थे मेरी प्रेगनेंसी में। ये एक ऐसा केस भी तो हो सकता है ना कि इसको कोई क्रॉनिक मेडिकल डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से उसको लगते हो, जैसे और हमने उसको ऐसे एज्यूम किया कि हाँ इसको एप्ला है। जैसे कि हिस्ट्री के पॉइंट्स बताओ, क्या क्या पूछोगे, जो जो कोई सोच रही क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर, है। प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल एडमिशन, हम्म, नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया, हम्म, और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुई है, हम्म। और मैडम और कोई डायबिटीज विद वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। तो आपको नहीं लगता आप मेडिकल हिस्ट्री में पूछ लोगे, या जब पेशेंट पूछ ने बताया आपको कि मुझे टीके लगते थे, तो आप बोले अच्छा वो टीके आपको क्यों शुरू किए थे, डॉक्टर ने आपको क्या बताया था, मरीज आपको बता देगा। डॉक्टर ने कहा तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चे नहीं ठहरे, तो इस वजह से तुम्हें ये इंजेक्शन लगे। अच्छा, आपने ठीक है। टेस्ट करवाया था 3 महीने के गैप से जो टेस्ट होता है? हाँ जी डॉक्टर साहब, कराया था। मोस्टली आपको दो ही फाइंडिंग्स मिलेगी एग्जाम में, ये वन सैंपल वाला वो नहीं होगा, जिगजैग नहीं होगा। एग्जाम बिल्कुल सिंपल होता है, ये जिगजैग सिर्फ हम डिस्कशंस में करते हैं ताकि दिमाग खुले बस। और मैडम इसमें एंटी रो और एंटी ला कराएंगे? वो एंटी रो एंटी ला एंटीबॉडी उसमें जिसमें फिर आपको ल्यूपस के सिम्टम्स मिल जाते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री हो गई, पेशेंट को कोई सिम्टम्स हैं तो फिर। ठीक हो गया। अदरवाइज आप मेनली जो है यही करवाते हो, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, एंटी एंटी फॉस्फेट, हाँ एंटी एंटी फॉस्फोलिपिड और बीटा ग्लाइकोप्रोटीन, बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन फैक्टर। टू ग्लाइकोप्रोटीन। हाँ। जी जी। अच्छा, एक और चीज इसके ना शायद कभी ये आया होगा पास्ट में, लेवल्स के साथ आया होगा। तो डॉक्टर कुरत ने एक बार मैडम नाहिद वाले ग्रुप में उस लेवल्स के वैल्यूज जो है ना इन एप्ला की क्राइटेरिया की नॉर्मल वैल्यूज वो शेयर की थी। मैंने कोशिश की कि मैं वो ग्रुप से ढूंढूं, ऑल्दो मैडम लेफ्ट करवा देती हम लोगों को, लेकिन वो चैट तो पुरानी पड़ी है, मुझे वो नहीं मिला। डॉक्टर कुरत को मैं बोलूंगी कि वो ना नॉर्मल लेवल्स वो शेयर कर दें, कि अगर मैडम ये एग्जाम में पॉजिटिव 40 नेगेटिव नहीं नहीं है? होता? लेवल्स के नहीं साथ नहीं, आई 40 होता है, थी एक 40 बार। हाँ इंटरनेशनल जी, यूनिट। ये एक बार ना आई थी एग्जाम में शायद लेवल्स के साथ, तो फिर डॉक्टर कुरत ने इसलिए वो लेवल्स भी सेंड किए थे ग्रुप में। तो मैं उनको बोलूंगी कि वो शेयर कर दें दोबारा से। और मैंने भी वैसे गूगल किए थे अभी ना दोबारा, क्योंकि मुझे मुझे पिक्चर तुम लोगों के लिए नहीं मिली, तो वो शायद 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 वो पास्ट में शायद एप्ला का वो जो पूरी रिपोर्ट होती है ना वो शायद रखी गई होगी। खैर नॉर्मल वैल्यूज लिखी हुई होती है, इतना वो परेशान करते नहीं है, लेकिन शायद वो जानना चाहते हो कि तुम लोगों को 40 का पता है या नहीं पता, तो वो लेवल 40 से ऊपर होंगे या 40 तक होंगे, 40 से नीचे और नॉर्मल। मैडम ठीक हो गया। इस पेशेंट की मॉनिटरिंग में हम जब इसका एनॉमली स्कैन कराएंगे तो उसकी चूंकि हिस्ट्री रही है तो हम इस पे यूट्राइन आर्टरी डॉपलर को मेंशन करेंगे देखो प्रिडिक्शन ऑफ डॉपलर के लिए। कराने के डॉपलर कराने के इसमें है तो सही रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, उसको हमने टच नहीं किया, मैं करना चाह रही थी। थैंक यू हादिया फॉर हाईलाइटिंग। देखो इसके पहला हाइपरटेंशन, शी हैड हाइपरटेंशन, शी हैड आईयूजीआर बेबी, ठीक है, एक अर्ली न्यूनेटल डेथ, उसका भी वजन का नहीं पता था। आईयूजी वो भी शायद स्मॉल फॉर गेस्टेशन होता है, या वो भी आईयूजीआर ही होगा मे बी, थोड़ी सी हिस्ट्री डिग आउट होती तो पता चल जाता। तो रिस्क फैक्टर्स तो हैं, इसकी बेसिस पे मैं यूट्राइन आर्टरी डॉक्टर करवा सकती हूँ 24 वीक्स पे, क्योंकि उसको पहले बच्चे उसके बैड आउटकम्स थे। अभी मैं विजिलेंट रहूंगी, मैं एक हिस्ट्री की बेसिस पे मैं यूट्राइन आर्टरी डॉक्टर करा लूंगी। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, मैं बस उसको नॉर्मल ही चलाऊंगी, लेकिन विजिलेंट मॉनिटर करूंगी मैं 24 वीक से उसको। अगर वो थोड़ा सा खराब आ जाता है तो फिर मैं, हाँ फिर मैं डॉपलर करवाऊंगी उसको, फिर मैं अम्लाइकल लाठी डॉक्टर डॉपलर परवेश, जरूर करा लूंगी। और डॉक्टर ऑब्वियसली मैं जब उसको एंटीनेटल विजिट्स पे बुला रही हूँ, मैं उसकी सिम्फाथोफंडल हाइट अच्छे से चेक करूंगी, पेशेंट से पूछूंगी हर विजिट में बच्चे की हरकत महसूस हो रही है, बीपी तुम्हारा कंट्रोल है, कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के, क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स चेक नहीं करते लेकिन उनको सिम्टम्स आते हैं। हर विजिट पे मैं ये चीजें मैडम चेक करूँ। जी जवेरिया आप बोल रही थी?
डॉक्टर पलवशा, ये जो पेशेंट थी ये आपको हिस्ट्री दे रही थी कि हर प्रेगनेंसी में उसको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, इवन उसको इक्लेम्शिया और इम्पेंडिंग इक्लेम्शिया की वजह से अर्ली डिलीवरी भी करवानी पड़ गई, और इन बिटवीन प्रेगनेंसी उसकी कोई कंप्लायंस नहीं है फॉर ये ब्लड प्रेशर चेकअप्स। अभी आपके पास आई है 140/90 उसका बीपी है, तो हम अभी भी बीपी को कंफर्म करेंगे या हम बस इसको क्रोनिक हाइपरटेंशन लेबल कर देंगे? नहीं, अभी मैं रीडिंग्स, मेरे पास चार्ट तो होना चाहिए कोई भी उसको ट्रीटमेंट देने के लिए। मैं 1 हफ्ता मॉनिटर करूंगी उसका बीपी। वो घर में कर सकती है, वो घर में भले ही वो पिछली प्रेगनेंसी सारी प्रेगनेंसी वो हाँ, सारी लेकिन प्रेगनेंसीज में आपको हिस्ट्री भी दे रही है चंदा, अगर आपने तब भी। उसको देखो कश्यप, अगर आपने उसको, हाँ ठीक है, तुम सस्पेक्ट कर रही हो इसको क्रोनिक हाइपरटेंशन हो सकती है, लेकिन चंदा उसको कितना डोज स्टार्ट कराना है उस हिसाब से तुम पहले, तुम्हारे पास रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना कि इसका बीपी हाई है। मैं पहले 140/90 पे मैं सीधा तो नहीं ना उसको दे दूंगी। चलो मैं दूसरी रीडिंग तो चेक करूंगी ना, एक और रीडिंग तो मैं जरूर लूंगी ना। less than 15. समझे ठीक। कश्यप? जी जी। अगर अगली रीडिंग उसकी ठीक आ गई, 024 होता है एंटी हाँ, कार्डियो। अगर ये अगली रीडिंग कौन में ठीक आ विस्पर कर जाती है रहा है? फिर। जी जी। डॉक्टर हादी अपना माइक ऑफ कर लें। ये गूगल कर रही है। मैसेज हाँ, किया नहीं ना, नहीं, मैं वो पॉइंट करी थी कमेंट्स में पढ़ रही हैं। डॉक्टर हादी आपकी वीडियो। आपको पता नहीं चल रहा आपकी वीडियो ऑन हो गई है डॉक्टर हादिया। अच्छा, हाँ कश्यप आ जाओ जरा। जी मैं मेरा जी मेरा डॉक्टर पॉइंट पलवल। समझ रही हो? मैं, इसका 140/90 बीपी है अभी, मैं इसको बोलूंगी थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारा अभी दोबारा चेक करूंगी, पानी वानी पी लो, ठीक है? अगर उसका दोबारा रीडिंग उसकी ठीक आ जाती है तो मैं उसको बोलूंगी, अभी अगर लेट सपोज तुम्हारी पेशेंट, तुमने दूसरी बार चेक नहीं किया, तुमने उसको दवाई दे दी, उसका कम हो गया कश्यप, तो हम्म। ठीक है ना? मतलब और जब उसको फॉलो ही नहीं किया गया, उससे पूछा ही नहीं गया कि प्रेगनेंसीज के अलावा आपका बीपी चेक हुआ था कभी, उसके अलावा तो नहीं बढ़ा हुआ, ठीक है? तो जब पूछा ही नहीं गया, मैं कैसे अज्यूम कर लूं इसको सिर्फ इस बेस पे कि इसकी पिछली प्रेगनेंसीज का आउटकम, चंदा वो आउटकम तो पीआईएच की वजह से भी, प्री क्लेम्शिया की वजह से भी खराब हो सकता है। हम्म वाई ओनली क्रोनिक सही। हाइपरटेंशन? गेटिंग माई पॉइंट? सो मॉनिटरिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप उसकी दूसरी रीडिंग लो, लेट्स सपोज दूसरी रीडिंग पे वो ठीक आ जाता है, 130/80 आ जाता है, 120/80 आ जाता है, फिर फिर मैं इसको फॉलो अप पे रखूंगी। फिर मैं फॉलो अप, मैं उसको बोलूंगी, बीइंग मी, मैं बोलूंगी कि तुम ऐसा करो, 1 हफ्ता पूरा सुबह शाम अपना ब्लड प्रेशर चेक करो, ताकि मैं कंफर्म कर लूं कि तुम्हें अभी कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि पेशेंट भी बड़ी कॉन्शियस है, तो वो जो है आपकी बात मानेगी, उसका कंसर्न ही ये था, ठीक है? अगर वो 1 हफ्ते की और फिर जब रीडिंग 20 सही वीक्स आ हो जाए, जाएंगे तो फिर मैं उसकी जो है वो 20 वीक्स हो जाएंगे तो मैंने कहा जब 20 वीक्स हो जाएंगे तो फिर मैं उसका जो पीआईएच का वर्कअप होता है वो करवाऊंगी, यूरिन एल्ब्यूमिन, बीपी आप मॉनिटरिंग। सिंपल यूरिन डिपस्टिक करोगे, बस यूरिन डिपस्टिक पॉजिटिव होगा तो फिर आप बाकी चीजें करोगे। डोंट फॉरगेट द स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स जो इंडिकेट करते हैं आपको नेक्स्ट एक्शन, ठीक है? इसको स्लो स्लो देखो ना, स्लो स्लो देखो, सिर्फ उसकी पुरानी हिस्ट्री मत देखो, उसकी बेसिस पे इंटरवीन नहीं करो, उसकी बेसिस पे विजिलेंट रहो कश्यप। आप आ रही है वो आपके पास हर विजिट पे, आप उसका बीपी भी चेक करो, आप उसका यूरिन डिपस्टिक भी करो, नॉर्मल है तो बस ठीक है, अगर पॉजिटिव है फिर आप उसका वर्कअप कराओ पीआईएच का पूरा। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, क्लैरिटी मिली थोड़ी सी कश्यप? जी जी डॉक्टर समझ आ समझ गई आई। ना? एनी अदर क्वेरी किसी की? अच्छा जी, अब इसको उर्दू में भी काउंसलिंग आपको पता होनी चाहिए। आप में से कोई एक बंदा जो वॉलंटियर सिलेक्ट हुआ था, है दूसरा कोई बंदा यहाँ पे? कश्यप है ना? कश्यप, आपने ये टॉपिक रखवाया था ना? जी डॉक्टर प्रभाषा। हाँ, कश्यप मुझे ये बताओ, लेट्स सपोज आपने डायग्नोज किया है पेशेंट को एप्ला, अभी अभी डायग्नोज हुई है आपकी पेशेंट, एंड यू हैव टू काउंसल हर, तो जल्दी से काउंसलिंग ये से स्टार्ट मीटिंग करूँ? एंड होने वाली है, जल्दी से मुझे ये बता दो कि
तुम उर्दू में एप्ला को कैसे बताओगी हादिया को कि तुम्हें ये एप्ला है, तुम्हारे बच्चे इसलिए गिर रहे हैं, ये सारा मुझे बताओ उर्दू में, पेशेंट को बताओ। जी। अच्छा, मैं बस काउंसलिंग से ही स्टार्ट करूँ ना? इंट्रोडक्शन काउंसलिंग, बस वगैरह तो मुझे सब ये होगा। सुनना है कि एप्ला को आप उर्दू में कैसे कन्वर्ट करते हो, बस। जी देखें, आपके सारे हिस्ट्री और आपकी जो मैंने हिस्ट्री ली है और आपकी एग्जाम आपको मुआयना किया और आपकी जो रिपोर्ट्स वगैरह करवाई हैं, उससे हमें ये पता चला है कि आपको जो बीमारी है उसका नाम है तिब्बी जुबान में हम उसे कहते हैं एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें रगों में खून जमने का मसला होता है, और अगर हमल हो तो हमल के अंदर बार बार हमल ज़ाया होने का भी मसला हो सकता है, या फिर अवल नाल में खराबी की वजह से जल्दी डिलीवरी भी करवानी पड़ सकती है, या फिर बच्चे ज़ाया हो सकते हैं और बच्चों का वजन कम रह सकता है। तो आपको जो मसला हो रहे हैं आपके हमल ज़ाया होने के, वो इसी बीमारी की वजह से हो रहे हैं। और लेकिन आप परेशान ना हो, ये काबिले इलाज बीमारी है। इस काबिल इलाज बीमारी है। इसमें हम एक गोली देते हैं जिसका नाम लोपरीन है। 150 मिलीग्राम की गोली है। ये आप शुरू जब से आपकी प्रेगनेंसी हुई है तब से हम आपको शुरू करवा देते हैं। और इसके अलावा हम एक इंजेक्शन जो जिल्द में लगाया जाता है, वो इंजेक्शन भी हम आपको शुरू करवा देंगे, और रोज़ाना की बुनियाद पर आपको वो इंजेक्शन लगेगा। और इस पूरी प्रेगनेंसी को हम इस तरीके से करेंगे कि हम आपका हर 2-2 हफ्ते बाद आपको बुलवाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, आपके सारे खून और पेशाब के टेस्ट करवाएंगे, देखेंगे आपके पेशाब में चर्बी तो नहीं आ रही है। और जब 20 हफ्ते का आपका हमल हो जाएगा तो फिर जो है वो जब आपका 20 हफ्ते का हमल हो जाएगा तो हम आपका बच्चे की साख्त का बड़ा अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। इसके अलावा हम एक कलर वाला अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जिसमें हम बच्चे की ग्रोथ नहीं 26 से 28 हफ्ते पर हम बच्चे की नशोनुमा देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, जिसको हम सीरियल ग्रोथ स्कैन कहते हैं। और वो स्कैन हर 4-4 हफ्ते से करवाया जाएगा। और आगे जब 34 हफ्ते का हमल हो जाएगा तो फिर आपकी ये जो गोली है ये गोली बंद करवा दी जाएगी, और 36 हफ्ते पर हम आपको बुलवाएंगे और देखेंगे कि आपकी डिलीवरी जो है वो आपकी डिलीवरी किस तरीके से करवानी है, उस पर बात की जाएगी। देखा जाएगा कि सब कुछ अगर ठीक है और बच्चा भी सीधा है और अल्ट्रासाउंड में सब कुछ ठीक आ रहा है, तो फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर परिभाषा नहीं नहीं आता मुझे। हाँ सही कर रही हो डॉक्टर हादिया, कश्यप कोई बहुत अच्छा कर सवाल रही हैं, है ऐसे ही बीच करना में? है। हाँ बिल्कुल सही। हादिया, आप पेशेंट है, आपको कोई कंसर्न है तो पूछे साथ साथ। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहिबा कि बस ये मैंने टीके ही लगाने हैं और इससे मेरा मसला हल हो जाएगा? जी जी हादिया, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इसकी अच्छी बात ये है कि जब हम इन दवाइयों के साथ बाकायदगी से इलाज करते हैं तो 90% केसेस में प्रेगनेंसी जो है वो हमल कामयाब हो जाता है, और सही और सलामत बच्चा माँ को मिल जाता है। डॉक्टर तो साहिबा, इस टीकों का और दवाइयों का कोई नुकसान तो नहीं होगा? हाँ, इसमें ये है कि चूंकि ये इंजेक्शन जिल्द में लगता है तो वहां पर जिल्द पर आपको रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा खून बहने की बीमारी आपको हो सकती है, क्योंकि ये खून पतला करने वाला इंजेक्शन होता है। और आपके सफेद जुज़े कम हो सकते हैं, लेकिन उसको भी हम मॉनिटर करते रहेंगे। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो वो हम बाकायदगी से आपके करवाते रहेंगे। अच्छा, ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अब मुझे बता दें कि मैंने इसके लिए जो है वो कितने कितने दिनों बाद आके आपको चेक कराना है? जी, चूंकि आपकी ये 7वां हमल है और पहले आपके पास सिर्फ एक ही बच्चा मौजूद है, इसलिए, और आपकी जो हमल है वो ज़ाया भी हो चुके हैं, आपको ब्लड प्रेशर का भी मसला है, तो इसके लिए हम आपको हर 2-2 हफ्ते बाद अपने पास बुलवाएंगे, ताकि आपका जो है क्लोज फॉलो अप रखा जा सके। और आपका हर विजिट पर हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, पेशाब में चर्बी का टेस्ट करवाएंगे। आपके अभी खून की कमी है तो वो अभी तो खुराक से और दवाइयों से पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। हम इसको टेस्ट को रिपीट भी करवा कर देख लेंगे, और ठीक हो हर गया। 2-2 हफ्ते बाद आपको बुलवाएंगे। बहुत अच्छा किया आपने। शाबाश कश्यप, इसको इतना डिलीवरी अच्छा का तो कैसे एक ही बताना है में मुझे? परेशान हो रही हो। PIL दे दें इसको। मुझे इसकी डिलीवरी का वो समझ नहीं आया, आगे मैं इसको वीबेक का ऑप्शन दूं या सीजर पे लेके जाऊं, वहां पे मैं अटक गई थी। आप उसको बता कोई दें बात। कि देखें, दो ऑप्शन है आपके पास, दो ऑप्शन है। अगर आप चाहती हैं तो आप नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सकती हैं, लेकिन चूंकि उसके आपके पास होगा कि लास्ट बेबी बोर्न उसका कब हुआ है। अगर आपके
पिछले ऑपरेशन को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, 1 साल जब 1 साल से ज्यादा हो जाता है तो हम ट्रायल दे सकते हैं कि हम नॉर्मल की ट्रायल दे सकते हैं, लेकिन हम पूरा आपको मॉनिटर करेंगे। जहां पर हमें लगा कि कोई मसला हो रहा है बच्चे को या आपको, तो हम सीजर की तैयारी करके रखेंगे। ये आप पर है कि आप डायरेक्ट सीजर की तरफ जाएं या फिर आप नॉर्मल की ट्रायल लेना चाह रहे हैं। सही ठीक है, इस तरीके से। सही जी। और यू स्टार्टेड और विद आपकी एप्ला डिलीवरी से की। पहले आपकी हाँ जी, आपकी डिलीवरी से पहले ये इंजेक्शन हम 24 घंटे पहले इस इंजेक्शन को आ रोक गया देंगे। याद। जी। ठीक है, रोको रोको आगे आपकी चलो। डिलीवरी से इस 24 घंटे पहले इस इंजेक्शन को रोक देंगे, और अगर आपका और सीजर होता है तो 24 घंटे बाद वापस इस इंजेक्शन को हम शुरू करवाएंगे, और अगले 7 दिन और उस वक्त हम आपकी कंडीशन देखेंगे। अगर आपको जरूरत हुई तो 6 हफ्ते तक भी इंजेक्शन जारी रखा जा सकता है, वरना फिर 7 से 10 दिन तक हम आपको ये इंजेक्शन जो है वो देंगे। 24 घंटे बाद शुरू करवाएंगे, और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 12 घंटे बाद शुरू करवाएंगे। और इसके अलावा हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि आपको किसी भी किस्म जो है वो अर्ली अर्ली मोबिलाइजेशन आपकी हो, और पानी की कमी ना हो, ताकि खून जमने की बीमारी ना हो सके डिलीवरी के बाद। परफेक्ट। कश्यप, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आई है? इतना अच्छा तो बताया आपने। और इसके बाद फिर कॉन्ट्रासेप्शन का बताऊंगी कि आपको ये हम कॉन्ट्रासेप्शन देंगे, और अगली जो है वो प्रेगनेंसी में आपका अब बस अब इससे कॉन्ट्रासेप्शन ब्रेस्ट फीडिंग तक खत्म, वहां तक टाइम पूरा हो जाता है, बट इनको बस टच कर ठीक देना एंड। ठीक है। ऑब्वियसली आप जो जो कंसर्न्स होंगे, रोल प्ले के पास क्वेश्चंस होंगे, वो आपसे पूछती रहेगी और आप जवाब देती रहेंगी। उसके नंबर्स होते हैं फिर आपके। तो इसमें पता नहीं, अब ठीक मैं होगी। भूल गई, मुझे कुछ एक एडिशन करनी थी। मुझे एक एडिशन करनी थी। कितनी कितनी ज्यादा भुलक्कड़ हूँ मैं, उफ। गजनी। यार, आई वांटेड टू ऐड समथिंग इसमें। हाँ, उसमें आप ऐसे, आपने ये भी बोला कि पूरी मुद्दत तक जो है वो आप लेंगी। कोई एक चीज आपने मिस की थी जो मैं बिल्कुल मेरे माइंड से सफा चट निकल गई है। मैंने क्या बताना था कश्यप, तुम्हें कुछ ऐड करना था मुझे, लेकिन वो कोई मैडम बोन नहीं। आपको काउंसिल करना था कि इससे आपकी हड्डियों की हो सकती है। यस, हाँ, देखो वो जो है ना, आप पेशेंट को बता रही हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स हैं कुछ, उसमें ना रीअश्योर करो थोड़ा। आपने एक तब भारी भारी उसको ये बोला कि खून जो है आपका पतला हो सकता है, आप बोले इसमें आप ये लफ्ज इस्तेमाल करें, थैंक यू आ गया, थैंक यू सो मच। आप उस ये इस्तेमाल करें वर्ड्स के कुछ इसके नुकसानात हैं, लेकिन जितनी मिकदार में आपको ये दवा दी जा रही है उस पे ये इलामात नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको फला 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 इलामात आए तो आप फौरन हमारे पास आइएगा, फिर हम आपके टेस्ट करें। ये मुझे ऐड करना। सही। यानी डॉक्टर बलवंत, जो भी जब भी हम पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन बता रहे होते हैं, साथ में हमने उसको रीअश्योर लाजमी करना है, ये पेशेंट Whenever सेफ्टी में you आता are alarming your patient, please reassure your patient. डराना मकसद नहीं है, बस उसको थोड़ा सा अलर्ट करना है, साथ ही रीअश्योरिंग वर्ड्स भी यूज कर लेंगे। ये अभी से ही ना दिमाग में डाल लो कि इस तरीके से आपने बोलना है। उर्दू में भी, काउंसलिंग में भी ऐसे बोलना है। जब स्ट्रक्चर्ड होगी तब भी आप ये बोलो, मैडम आई विल काउंसल माय पेशेंट, आई विल टेल हर दैट शी हैड अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी विद दिस कॉम्प्लिकेशन, बट एट द सेम टाइम आई विल रीअश्योर हर, give her psychological support that these can be managed with proper antenatal care and whatever, जो भी फिलिंग दी ब्लैंक्स कर लेना उस केस में। ठीक है, ये एक टेम्पलेट है जो लिख के रख लो, फिर हर केस में आपने ऐसे करना है। जी हाँ दिया, जल्दी जल्दी, 1 मिनट रह गया मीटिंग का। मैडम एक बात ही मुझे पूछनी थी कि डॉक्टर जवेरिया ने इसको किया था ब्रिज है वॉरफेरिन के साथ। अगर हमारा एप्ला है या कोई उसको वीटी भी था, तो हमने अपने ऑप्स के पेशेंट में जिसमें कोई और कार्डिक फैक्टर नहीं है, हम उसको कर सकते हैं इजीली ब्रिज उसके साथ वॉरफेरिन के साथ फॉर 6 वीक्स। करते हैं, लेकिन हम अकेले नहीं करते, हम लोग ना कार्डियोलॉजिस्ट के ओपिनियन के साथ ब्रिज करते हैं, अकेले हम नहीं डॉक्टर करते। परवशिया, मैं बताऊं इसका आंसर मैंने क्या सोचा था? मुझे था कि वारफरिन टेबलेट फॉर्म में आ जाती है तो वो पेशेंट के लिए लेना इजी होगी। मुझे ये कि ब्रिजिंग बताना बड़ा मुश्किल होगा। इतना ब्रिजिंग टाइम ही नहीं बताना, होना बताने का। ब्रिजिंग तक तुम लोग कहा दिया पहुंचोगे ही नहीं। बताना तो इसमें तो मुश्किल ही है। ब्रिजिंग करनी नहीं है ना चंदा, इसमें नहीं करनी। वो 6 वीक पल्मोनरी तक देंगे एम्बोलिज्म तब वाले भी। की करनी है, जिसका वीटी का हाँ हाँ इवेंट होगा, हाँ, उसमें हम डिटेल में करेंगे इसको डिस्कस। ठीक हो आरपीएल गया, तक थैंक रहो यू। बस, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे पता है आरपीएल में वीटी मिक्स होता है, वो टांग अड़ाता है, हमें कंफ्यूज करता है, लेकिन हमने नहीं होना कंफ्यूज। मतलब जी 6 वीक्स थैंक तक तो यू। हम